हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. दिस इज अंजलि प्रताप एंड वी आर वंस अगेन इन आवर इंग्लिश सेशन where we will try to see another very interesting topic. If you are following this series, everyone, let me just remind you that in last session we have already completed the topic of error spotting. So if you have not watched that, I would definitely recommend you all to just have गिव इट अ लुक. अपार्ट फ्रॉम दैट उस सेशन के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी दी जा रही है. हर एक सेशन के साथ यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ प्रैक्टिस सेशन वेयर योर आफ्टर दिस वीडियो यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट द डिस्क्रिप्शन and your description contains a set of PDF, some 5 to 7 questions, everyone, which you people can target in order to do a good practice in terms of that topic. So, what are we going to do in today's session, everyone? We are going to do another important part of your English section. When I say part, students, I didn't, let's say, mean here that this is going to be the, let's say, the only way that that question can be asked. So let me just tell you in a broader view, it would be better that if we divide our entire English section in three parts, the one which is going to get inspired one for this particular one, for this particular question, what we are going to do is coming from your bigger umbrella of your vocabulary. Now, this is one such topic which has always created, let's say, problem for lots of students, because this is one thing where we need rigorous practice, everyone. It's not only practice but a rigorous one is needed in this sense. Why do we need that? Because we as a human, we tend to forget the words, right? हमें शब्द जो है ना, अगर हम उसे रोज़ाना इस्तेमाल ना करें तो हम उसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे, right? But if you start using those words frequently, if you read those words frequently, if you revise those words frequently by any means, anyone, सिर्फ बोल करके ही नहीं, लिख करके, आप उन नोट्स को रिवाइज करके, कोई भी तरीका आप अपनाओ, वो आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन को समझने के लिए, राइट एवरीबडी? So we will try to understand in this session that what kind of questions we are expecting in our exam. ठीक है, हम अपने एग्जाम में एसओ के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो यू कैन सी द डायरेक्शन फर्स्ट. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हर सेंटेंस के बाद आपको 2 ब्लैंक मिल रहे हैं. चूज द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स दैट बेस्ट फिट्स द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. Let's have a look. The very first question on your screen, everybody. So it's a double filler question. Fillers के भी आपको कई सारे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. I'll let you know slowly throughout the session. So here comes the first part. Let's start reading the sentence. The government's modified scheme states that legal heirs of farmers who have committed suicide on being unable to pay the loan dash from unlicensed private money lenders are not dash for compensation. तो भाई ये अनलाइसेंस्ड प्राइवेट मनी लेंडर से पैसे उधार ले रहे हैं, राइट? सो वी कैन से अटेन नो, अचीव नहीं. ऑब्टेन कैन बी वन थिंग, बट आप मनी लेंडर से खरीदोगे क्या? यू आर जस्ट टेकिंग मनी आउट ऑफ इट, है ना? दूसरी बात, फॉर द सेकेंड ब्लैंक वी कैन से कि ऐसे व्यक्ति जो अनलाइसेंस्ड लोगों से पैसे ले रहे हैं वो एलिजिबल ही नहीं है कॉम्पनसेशन के लिए. सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर अस इज ऑप्शन नंबर सी. सो यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट ऑल द पॉसिबिलिटीज जो आपके सेंटेंस के साथ मैच ही नहीं कर रहा है. सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एवरीवन. Cabinet committees are basically subcommittees within the Union Cabinet to look at specific remits and dash on various issues including security, economy and even dash on dates for parliament sessions. चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सबसे पहले हमारा पहला ब्लैंक जो है ना, उसे यहाँ पर एक नाउन की ज़रूरत है. क्लियर बात है? ओके. सो हम कह रहे हैं this union cabinet to look at specific remits and find won't fit our category of noun. Deliberate can be, dilate can be, है ना?
पॉपुलेट अगेन कैन नॉट कम अंडर योर कैटेगरी ऑफ नाउन. इवन डायलेट को भी जो है ना आप वर्ब के जैसे यूज कर सकते हो. सो यहाँ पे जो वर्ब, यहाँ पे जो वर्ड है बेसिकली हमारा डेलिबरेट, ये क्या बताना चाह रहा है? टू थिंक. When you deliberate on something, that means you think on that part. चलिए दूसरे ब्लैंक में देख लेते हैं क्या ये सही होगा. इवन डिसाइडिंग ऑन डेट्स फॉर पार्लियामेंट सेशंस, बेसिकली हम डेट्स तो डिसाइड कर ही सकते हैं कि किस दिन होंगे पार्लियामेंट सेशंस. तो ये दोनों ब्लैंक के दोनों वर्ड हमें सुटेबल मिल रहा है. आई होप वी आर ऑल गुड टिल क्वेश्चन नंबर 2. ओके, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 एवरीबडी टुगेदर. The enforcement drive against the fake invoice fraudsters and other GST evaders is likely to dash with an objective to catch. मतलब वो क्या कर रहे हैं? उनका एक एम है क्या करने का? टू कैच एंड बुक डैश एलिमेंट्स इंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज. तो भाई इलीगल एक्टिविटीज में किस प्रकार के एलिमेंट्स जो है ना इन्वॉल्व होंगे? सोचो जरा. ऑब्वियसली द बैड वंस, द डिसऑनेस्ट वंस. तो डिसऑनेस्ट के लिए आपके पास सबसे बेटर वर्ड कौन सा है? द सेकेंड ब्लैंक इज वेरी इजी फॉर अस. डेफिनेटली unscrupulous. Unscrupulous is somebody who is very unfair, राइट? तो अभी देख लो फर्स्ट वाले ब्लैंक में इंटेंसिफाई फिट हो रहा है. लाइकली टू इंटेंसिफाई, हाँ जी, ड्राइव जो है वो इंटेंसिफाई हो सकता है. इट कैन गेट स्ट्रेंथेंड, वो स्ट्रेंथेंड हो सकता है. सो डेफिनेटली वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी. राइट एवरीबडी? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सो नाउ आई होप यू नो दैट व्हाट इज द राइट वे. There will always be some confusing words in the option, students, but let that not deter you from finding the right ones. The creation of a new union ministry to oversee the cooperative sector will dash it from negligence. So negligence मतलब आपकी केयरलेसनेस हो गई, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज़ पे. तो negligence से मिनिस्ट्री क्या करेगी? आप ही सोचो, what will ministry will try to do? To basically work on that, to avoid the sector going from negligence part, right? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. According to the government, but critics fear, लेकिन लगता है लोगों को कि this ministry is dashed to concentrate even more powers in the hands of center. तो भाई यूनियन मिनिस्ट्री कुछ और कर रही है बट क्रिटिक्स को कुछ और लग रहा है, राइट? सो देयर इज अ वेरी ऑपोजिट व्यू कमिंग आउट फ्रॉम दिस वन सेंटेंस. ठीक है, रिडीम का मतलब आप आई होप सभी लोग जानते होंगे. फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर शॉपिंग, यू कलेक्ट सम पॉइंट्स, फिर आप उन पॉइंट्स को रिडीम करते हो. तो रिडीम का मतलब हो गया टू गेट समथिंग बैक. रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, विल रिड्यूस इट फ्रॉम, नो. विल रिकन्सिडर इट फ्रॉम नेग्लिजेंस, रिकन्सिडर, चलो थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं रिकन्सिडर अगर आपको लगता है तो. रिकॉग्नाइज अगेन कैन नॉट गो. चलिए सेकेंड ब्लैंक में देखते हैं. बट क्रिटिक्स फियर दैट मिनिस्ट्री इज पर्पस्ड टू कंसंट्रेट, या मिनिस्ट्री इज पोर्टल. अगेन पोर्टल इज नॉट इवन अ वर्ब जो हम यहाँ यूज कर पाएंगे. तो वी नीडेड अ वर्ब फॉर्म, राइट? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है. पर्पस्ड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? टू हैव वंस इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव. मतलब मिनिस्ट्री का इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा लग रहा है कि वो सारा पावर अपने हाथ में करना चाहते हैं. राइट एवरीवन? सो दैट वाज आवर फर्स्ट वे जिससे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने एग्जाम में. लेट मी ऑल्सो टेल यू क्वाइट ब्रीफली कि दूसरा पैटर्न से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, लाइक सिंगल फिलर, आई एम होपिंग कि आपको वो पहले से आइडिया है. दैट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ दीज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड. तो मैं आपको कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे करा रही हूँ. सो फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंटेंस जिसमें एक ही ब्लैंक है. Now you are given 6 words denominated as 1, 2, 3, 4, 5, 6, out of which you have to pick 2 correct words, either of which will make the sentence meaningfully correct and complete. तो आप समझ गए आपको क्या चुनना है? चलिए let's do it. अब जिन बच्चों की vocabulary बहुत अच्छी है वो शायद ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, बट ठीक है, नो वरीज एट ऑल. हम सेंटेंस समझेंगे और फिर उसके हिसाब से भी आंसर क्रिएट करेंगे. सॉरी.
The judge observed that tax evasion is to be dash as an anti-national habit, attitude and mindset and unconstitutional. मतलब टैक्स इवेजन को कुछ तो मान लेना चाहिए. सबसे इजी वर्ड हमारे पास क्या लग रहा है? मुझे लगता है कंक्लूडेड. राइट एवरीवन? आई थिंक दैट्स द फर्स्ट वर्ड विच इज कमिंग टू आवर माइंड व्हेन वी रीड दैट. तो चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए आउट हो गया बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन 2 देयर. ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, एंड वी वर सो लकी कि हमें एक ही बार में आंसर मिल गया. Awesome. So the right answer was option number B, everyone. Construed का मतलब हो जाता है when you understand something in a particular way. When you understand something in a particular way. मतलब आप टैक्स इवेजन को एंटी नेशनल हैबिट समझ लीजिए. तो आई थिंक बोथ ऑफ द वर्ड इज करेक्टली फिटिंग इन हियर. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, everybody. On predictions of a third wave, the ministry said that its dash could be significantly buffered by expanded vaccination and meticulous observance of COVID appropriate behavior. तो भाई क्या है जो significantly buffer हो सकता है? क्या है जो significantly buffer हो सकता है? It's convenience, it's contagious, it's confluence, it's emergence, it's emanation and it's emulation. कुछ वर्ड्स जो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं. कंटेजियस, कन्वीनियंस, है ना? कम से कम 1 और 2 वाले तो हमें बिल्कुल गलत लग रहे हैं. वेरी रॉन्ग. ओके, इमर्जेंस कुड बी सिग्निफिकेंटली बफर्ड. इमर्जेंस मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब शुरुआत हो रही है. राइट एवरीवन? कोई चीज़ जब शुरुआत हो रही है तो चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि इमरजेंस जो है वो जो है ना, वो हमारा बफर हो सकता है बाय एक्सपैंडेड वैक्सीनेशन. मतलब कोविड-19 अब उतनी तेज़ी से वो ना बढ़ेगा. बफर्ड मीन्स व्हेन समथिंग इज नॉट लेट्स से गोइंग ऑन स्मूथली and it is experiencing some pauses and stoppages in between. Okay, so emergence जो है वो कोविड का कम हो सकता है. चलो ठीक है. इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इमैनेशन. इमैनेशन का मतलब भी इमर्ज होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4 and 5. क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं. सेट आपके सामने है एंड दैट्स अ ट्रेडिशनल सेट एवरीवन. आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. India's respect dash when government enforcement agencies unerringly target political opponents of the government. मतलब क्या हो रहा है? इंडिया का जो इंडियाज रिस्पेक्ट डैश मतलब कुछ तो होता है. हाइट्स, shivering. Now this form of word we don't require here. India's respect dwindles. India's respect reduces dangles. भले होता तो grammatically वो correct होता बच्चे. Now we have only 2 option, dwindle and heights. India's respect heights. Heighten होता तो we might have considered that students, but heights is not a verb here. तो ये भी out होता है. So we are left with only one option and that is our right answer. Dwindle का मतलब क्या होता है? When something is not stable. वो जो है ना घट रहा हो. So for that we use dwindle. Okay guys, one more question in front of us. The government should use this as an opportunity to allow private individuals the freedom to dash powerful technology. तो भाई टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. एंड वी हैव अ वेरी गुड वर्ड हियर एज हार्नेस. हार्नेस का मतलब ही होता है यूटिलाइज करना, यूज़ करना. राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ई हियर. सो आई होप नाउ ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विड प्रोवाइड यू एन आइडिया कि क्या क्या पैटर्न में हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में. Again, I would like to remind you here everyone that we have a practice set given in the description of this video. Please go ahead and attempt that. कोई भी doubt हो, you can ask us in the comment section. आज के लिए इतना ही. Thank you for being here everyone. Bye bye. Take care.